Let me give you a brief introduction of our resource person, Dr. M.A. Rafiq Saab. As such, Dr. M.A. Rafiq Saab, if I tell you, he is a renowned social activist. And I cannot really comprehend his greatness in such a small fraction of time. But still, few points I'd like to highlight about him. He is neither a commercial nor a cabin confined doctor. His passion for service and compassion for humanity has earned him a very respectable position in the hearts of lakhs of people across the world. In this selfish and commercial world, majority of people are running after name and fame either for themselves or their organizations. But Dr. Rafiq Saab is one among those rare individuals who are promoting hundreds of NGOs without any name, without any logo, without any visiting card. Despite working as an advisor to certain group of medical colleges, he takes out time from his busy schedule and visits NGO and institutions to motivate their associates and promote their cause. Dr. Rafiq Saab worked for WHO for 17 years, World Health Organization for 17 years, and helped the Saudi government to establish many polyclinics across the Kingdom of Saudi Arabia and brought health awareness and showed tremendous results in the health department. He also worked for Iran government and served the wounded soldiers on the borders during the Iraq war in 90s. Once an Iraqi flight was put down by Iran soldiers, Dr. Rafiq Saab was threatened not to give treatment to those 12 Iraqi soldiers who were badly wounded. Jeopardizing his life, he went to those wounded soldiers and saved the lives of 9 soldiers by giving first aid treatment to them. Recognizing his bravery and justice to his job, an organization in New Delhi honored Dr. Rafiq Saab with Rajiv Gandhi Global Excellence Award in 2012. He has traveled all across India and acquainted over 50,000 students, teachers, police officers, and ulama with the life-saving skills through his very informative and interesting lectures on first aid. Identifying his compassion for the students of government school, as Zedda West NGO honored him with Talent Award in 2017. Telangana Minority Residential Educational Institution Society, first time in the history since independence, Telangana government has succeeded in establishing 70 residential schools for minority students, and this year 130 more numbers of schools have been established. Undoubtedly, the credit goes to the Chief Minister KCR Saab there, IPS A.K. Khan Saab, and IFS Saifullah Saab, and few other prominent officers. But Dr. Rafiq Saab, as a social activist, played a very instrumental role in helping Telangana government achieving his milestone. Identifying his selfless efforts for the betterment of minority and Telangana government, honored Dr. Rafiq Saab on National Education Day with Maulana Abul Kalam Azad Award in 2016. Apart from this, he also plays a pivotal role in establishing many women organizations in the field of women empowerment. He played a pivotal role in establishing the Science Academy there in Hyderabad. Then he is also associated with an organization called Masco Alif, and he also provides memory and personality development programs. So this is all in a nutshell, and I have told you I cannot really comprehend his contribution to the society. So without taking much time, sir, I would like to request Dr. M.A. Rafiq Saab to take on the charge of this platform and enlighten us with all those awareness tips and the ways and means to keep us safe and sound, and how to help other people in this pandemic, sir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of God, the most beneficent, merciful, respected Maulana Badruddin Ajmal Sahab, Sirajuddin Ajmal Sahab, Abdul Rahman Ajmal Sahab, then Khasrul Islam Sahab, Azad Sahab, Markazul Marif ke head Chaudhry Sahab, and all the doctors of Ham Hospital, professors, assistant professors, and alumni of Ajmal Foundation and Markazul Marif. Nearly 140 doctors who are already passed,
with the help of Ajmal Foundation and Markaz al-Marif and the budding doctors of Assam and so many other paramedical staff and volunteers. A very good evening to all of you. Let us discuss this now. I will give a brief introduction of what is COVID for the beginners. और मैं समझता हूँ बाज़ लोग अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मैं उर्दू में भी बोलते रहूँगा और उससे जो है फ़ायदा होगा सारे लोगों को। और पहले बताते चलूँ आपको कि कोविड है क्या। कोरोना वायरस, कोविड जो है, कोरोना माने जो है आपके ताज को कहते हैं, क्राउन को कहते हैं, उससे कोरोना आया है। 19 इस वजह से कि 19 में डिस्कवर हुआ है और ये जो है यूहान जो एक शहर है चाइना का, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इंडिया को जो आया है एक मेडिकल स्टूडेंट लेके आई है। ये जो है 19 में 30 जनवरी को जो है फर्स्ट टाइम मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ती थी वो केरला लेके आई, वहाँ से फिर पूरे हिंदुस्तान में फैला। आपको तो पता है लास्ट टाइम जो है अभी हम इतना वाकिफ नहीं थे, लोगों के पास टेस्ट करने की भी नहीं थी सलाहियतें, मालूम नहीं था कि क्या मर्ज है कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में अब्दुर्रहमान अजमल साहब हम मिलके जो भी छोटी मोटी नॉलेज हमारी थी उससे हम शुरू किए और करते करते बड़े बड़े लोगों तक, जो ऐसे लोग जो है जो आपके बॉम्बे में कैंडी बीच हॉस्पिटल और जस्ट लोग हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं, वो घर में बैठते हुए अपने वालिद का इलाज सारे लोग मिलके किए। और एक ख़ास बात क्या है इसके अंदर कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि भाई एक घर में एक पेशेंट रहता है, वालिद पूरे बच्चे मिलके उसकी ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा फॉर्मूला डिज़ाइन किए, आप यकीन नहीं करेंगे 10 आदमी घर में रहते हैं, 10 के 10 भी सेव रहते हुए वालिद की खिदमत की। क्या करना है, थोड़े प्रिकॉशंस करना है। जैसा कि आप एक घर में एक पेशेंट है तो घर के जितने साथी लोग हैं उनको पहले आइसोलेट कर देना है। जो पेशेंट है पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करना है, उनका वॉशरूम अलग रखना है, उनके बर्तन अलग रखना है। उसके साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ रहते हैं, जो भी का केयर टेक कर रहे हैं, उनको N95 मास्क लेना है और जो है हैंड वॉश करने का है, सैनिटाइज करने का है और उसके बाद जो है उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने का है। इम्यूनिटी बूस्टर्स में विटामिन सी, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये चीज़ें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और स्टीम इनहेलेशन ये भी जो है आपके इसमें फ़ायदेमंद होता है। ये बात बताते चलूँ आपको कि अगर हाथ धोने से 20 सेकंड के लिए 10 रुपए के सोप से हाथ धोने से वायरस मरता है। सैनिटाइज करने से वायरस मरता है। सैनिटाइज क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल से वायरस मर जा रहा है। इतना माइल्ड वायरस है कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। तबाह करने वाला वायरस देखे तो जो है 10 रुपए के सोप से मर जा रहा है। आप सैनिटाइज करने से मर जा रहा है, सैनिटाइज कुछ भी नहीं, अल्कोहल से मर जा रहा है। उसी इस हिसाब से जब स्टीम लेते हैं उसके ऊपर एक लेयर होता है, उसका फैटी लेयर होता है, वो फैटी लेयर पिघल जाता है साबुन से हाथ धोने से, सैनिटाइज करने से वो लेयर पिघल जाता है, वैसे स्टीम लेने से मर जाता है। ये जो है इससे छोटी प्रिकॉशंस अगर आज हम ये सारी चीज़ें हमारे अवाम में बताएं, आप अगर हुजाई में रहते हैं तो हुजाई के लोगों को बताएं, आप जो है और दूसरे करीब के गुवाहाटी में रहते हैं तो गुवाहाटी में बताएं, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट्स पे है। इसके लिए कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बड़ी डिग्री की ज़रूरत कब होती है, टेक्निकल काम के लिए। ये आम आदमी जो हमारे मरकज़ मारिफ का हर आदमी, हमारे उलमा हजरात, हमारे टीचर्स, हमारे हाउस वाइफ्स भी दूसरे हाउस वाइफ को भी बता सकती है छोटी चीज़ें। तो ये जो है ये इल्म नाफे है, इसको फैलाना चाहिए। अब रही बात इसका जो है 3 तरीके से कैटेगराइजेशन है। इसमें जंग जो जीती जा सकती है एक आम आदमियों के लिए तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या है, एक तो जो है आप जो है मास्क लगाने का है, एक लगाने का है दूरी रखने की है, 2 मीटर से 3 मीटर की दूरी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर उसमें स्पीच में बताते हैं कि भाई आप जो है सारे लोगों को हाथ धोने के लिए कहते हैं, सैनिटाइज करने के लिए कहते हैं, दूरी रखने के लिए बोलते हैं।
चौथी चीज जो है मास्क लगाने के लिए कहते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ मास्क से। मास्क जो है डिफरेंट टाइप्स के मास्क होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं दे नो वेरी वेल। एक आम मास्क होता है जो लोग जो है अपने कपड़े से भी, या खवातीन जिसके पास मास्क नहीं है वो अपनी दौनी से भी, या फिर जो भी एक आध जो कपड़ा है कपड़े का भी बांध लेते हैं, वो भी 2-3 लेयर रखे तो मिनिमाइज तो करता है। अगर कुछ भी नहीं है मास्क तो इससे भी रुक सकता है। सेकंड चीज है जो आप क्या है, एक होता है सर्जिकल मास्क जिसमें 3 लेयर होते हैं। ये सर्जिकल मास्क क्या करता है, 3 तरीके से फिल्टर करता है। ये जो माइक्रोन्स उसके जो 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 इसकी साइज होती है, ये 200 माइक्रोन्स की साइज होती है इसकी, तो ये उसके अंदर रुक जाता है वायरस। तो ये आम आदमी जो भी यूज करते हैं ये सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। अब रहा N95 मास्क जो यूज करना है, ये ऐसे लोग यूज करना है जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, जो रात दिन पॉजिटिव पेशेंट्स को देख रहे हैं, या फिर ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि भाई क्राउडेड प्लेस है, तो वहां पर आपको इन्फेक्शन होने का चांस दिखाई दे रहा है, तो जब N95 मास्क यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको इसके अंदर जो है इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके अंदर, यू विल बी वेरी अस्टोनिश्ड टू नो व्हाई पीपल आर सफरिंग टुडे विथ ऑल दीज थिंग्स। They are getting serious and getting admitted in ICU and in hospitals because of the delay in the starting of the treatment. They are not understanding what the symptoms are. Very mild symptoms are there. बहुत ही हल्के फुल्के symptoms है इसके। अभी एक आध आदमी को पहले आता है बॉडी एक होता है। अब बताइए बॉडी एक कितने लोगों को नहीं होता, किस चीजों से नहीं होता। कभी आप थक के आ गए, या ज्यादा वॉक करे, या खाना बराबर नहीं खाए, या फिर आप जो है कहीं ज्यादा रात में जागे हैं, तो उससे भी बॉडी एक होता है। तो आदमी क्या करता है, इसको खाली एक पेनाडोल देके भूल जाता। मगर आज की तारीख में बॉडी एक है तो ये अलामत है कोरोना की। सिर्फ बॉडी एक बताओ, एक काफी है। सेकंड है अलामत, आपकी सूंघने की सलाहियत चली जाती है। सूंघने की सलाहियत क्या है, यू विल नॉट बी स्मेलिंग एनीथिंग फ्रॉम योर नोज, तो ये भी एक अलामत होती है। थर्ड होता है टेस्ट चले जाता है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अरे बहुत अच्छा पकाए हैं या मीठा है, खा रहा है, नहीं कर सकते। थर्ड। फोर्थ चीज होती है मामूली टेम्परेचर आएगा, इसमें कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं आएगा, यानी 104 टेम्परेचर आ रहा है, या फिर जैसा टाइफाइड में आता है 104 आता है। और इसको स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं, जैसा सीढ़ी पे चढ़ते हैं टाइफाइड में वैसा होता है, स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। जैसा कि 100 है तो नेक्स्ट डे 101 होगा, 101 से फिर नीचे नहीं आएगा, फिर 102 होगा, 102 से 103 होगा, 104 होगा। तो इसको ये टाइफाइड की अलामत है, ये टाइप का फीवर होता है। मलेरिया में होता है एक दिन फीवर आएगा, एक दिन नहीं आएगा, और ऐसा कपकपी होगी आप, इसको कहते हैं शिवरिंग बोलते हैं। ये 3 चीजों में होती है शिवरिंग। एक होती है मलेरिया में, एक होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जब पेशाब की नाली में जब इन्फेक्शन होता है तो भी चिल्स आते हैं। थर्ड आते हैं न्यूमोनिया में। तो 3 किस्म का होता है, तो ये अलग होता है। इसके अंदर मामूली टेम्परेचर होता है, आप देखेंगे टेम्परेचर लगा के हाथ या थर्मामीटर से तो 99 रहेगा। 99 में क्या करता है आदमी, पेनाडोल लेके भूल जाता है। तो उसके बाद और क्या अलामत आती है, कभी मोशंस आते हैं। मोशंस कितने बार नहीं आए आपको, हमको सारे को आते रहते हैं, मगर आज की तारीख में मोशन आ रहा है तो उसको कोविड समझना है। उसके बाद आज नई अलामत भी आ गई है, हिकअप्स आ रहे हैं, हिचकियां जो कहते हैं, हिचकी ऐसा, तो ये भी अलामत आ रही है आजकल। तो ये जो है ये हिकअप्स कहते हैं उसको। तो ये जो है अलामतें, इसको आसान ले लेना। अगर ये आ रही है किसी को, पहला काम ये करना है RT-PCR टेस्ट, या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट, या फिर एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट। 3 टेस्ट होते हैं, इसके अंदर बेस्ट होता है RT-PCR। RT-PCR क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन। पॉलीमरेज चेन में क्या होता है, वायरस का पार्ट दिखता है। पार्ट जब देखेंगे, अगर आप किसी इंसान को देखें, बोले मैं देख लिया हूं, अब बोलेंगे नहीं वो हम देखे नहीं किसी को, नहीं देखे बाद आपके आंख से देख रहे हैं वायरस को। अगर जो भी लोग बोलते हैं अपनी नादानी से बोलते हैं कि वायरस नाम की कोई चीज ही नहीं है, गलत बात है। जब आप ये टेस्ट के अंदर पार्ट देख रहे हैं उसका,
RT-PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसका पार्ट दिखता है। जब पार्ट दिख रहा है तो ये स्पेसिफिक है कि ये वायरस है। तो इसका 70% इसकी एफिकेसी होती है। बेस्ट होता है RT-PCR कराएं। रैपिड एंटीजन भी करा सकते हैं, मगर 50% रहते हुए भी नहीं आता इसके अंदर। और जो है और एक एंटीजन टेस्ट होता है, ये उसकी एफिकेसी उतनी नहीं है, मगर रैपिड ये होता है कि जल्दी कराने के लिए मालूम हो जाता है। और अगर 30% ऐसे भी लोग होते हैं आपका नेगेटिव आया तब भी पॉजिटिव होने की गुंजाइश रहती है 30%, तो उसको 1 हफ्ते के बाद में फिर करना पड़ता है। ये रहेगा आपके RT-PCR कराए। उसके बाद क्या करना है, अगर पॉजिटिव आ गया आपका, आइसोलेट होना है। आइसोलेट क्यों होना है, इसकी उम्र होती है 14 दिन। तो इसलिए आज जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस है, अब हमारे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है जितने भी स्टैच्यूटरी बॉडीज है हमारे, वो ये बोलते हैं कि भाई 14 डेज क्वारंटाइन क्यों करो बोलते हैं। इसकी लाइफ होती है 12 दिन। 12 दिन में वायरस मर जाता है। अगर कोई इंसान फीवर आए बाद में 12 दिन तक अच्छी अलामतें चल रही है उसकी, तो वो पार हो जाता है। पहले हफ्ते में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेजी से फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है इसका। तो ये जो है, इस मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए कई तदाबीर है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो है अलामतें होती है इसकी कि बहुत फास्ट। तो इसकी जो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आप आइसोलेट हो गए। आइसोलेट होने में क्या है, आप दूसरों से रब्त में नहीं आते। रब्त में नहीं आए आप तो फैलने का चांस कम होता है। तो बाज़ घरों में 2 रूम्स होते हैं, 3 रूम होते हैं, 4 रूम होते हैं। बाद में बाज़ ऐसे भी पेशेंट मैं ट्रीट कर रहा हूँ, एक वॉशरूम रहता है, 2 ही रूम्स थे, 5 आदमी 6 आदमी रह रहे हैं। 6 people they used to reside in that. So we gave them instructions, just try to put any antiseptic in the washroom, try to make it clean, and you will be astonished to know all 5 to 7 people, they did not contract the disease because they were wearing the mask, they were doing sanitization, they were washing the hands, and they were taking immunity boosters. सिर्फ ये करने से उनको जो है संक्रमित नहीं हुए वो लोग। तो ये हम क्या करना है, आइसोलेट कर दिया उनको। आइसोलेट करके बोलना है कि भाई तुम्हारा वॉशरूम अलग है, तुम्हारा प्लेट अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, सब चीज अलग है। अब उसके अंदर इनको, अगर आज की तारीख में अगर नौजवान इंसान है और उनको जो है अलामतें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा बॉडी एक है, तो उनको सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर्स देने से ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर्स में क्या है, विटामिन C है और फोलिक एसिड है, जिंकोबिट है, जिंक प्लस बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन D है, और अच्छी ग़िज़ा है। उसके अंदर जो है हाई प्रोटीन डाइट लेते हुए अगर ये ले लें आप, और उसके अंदर जो है थोड़े स्पाइसेस का भी रोल है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसके अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोग मर गए, और देखा ये गया है जहां जहां भी स्पाइसेस ग्रोइंग एरियाज है, देयर वर नो डेथ्स। फॉर एग्जांपल मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, केरला, देयर वर नो डेथ्स। सो ऑल दिस स्पाइसेस हैव a great role to play, like कलौंजी जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो बनती है कलौंजी से बनती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सिवाय मौत के हर चीज की बीमारी में इसमें शिफा है। तो कलौंजी एक है, उसके साथ है अदरक है, अजवान है, और दालचीनी है, सिनेमन कहते हैं इसको। उसके साथ तुलसी के पत्ते हैं, और इसे मिला के काढ़े की शक्ल देते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा टी डालते हैं, डाल के पकाते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ती। अगर इससे कोई कहता है वायरस मर रहा, गलत बात है। वायरस नहीं मरता इससे, खाली इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जैसा काढ़े से होती है वैसा विटामिन C से होती है। विटामिन C नहीं मिल रहा है आपको, नींबू का शरबत पी लीजिए, ऑरेंज का जूस पी लीजिए, 2 से 3 गिलास, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आज भी यहाँ के जितने भी पल्मोनोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि आप विटामिन C की 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाइए, आप जो है वायरस को भगा दे रहे हैं। देखिए आप, तो आज और कई आप देखे होंगे सोशल मीडिया में भी कई लोग एक्सपेरिमेंट करे हैं
कि 6 glass of orange juice, 4 glass of coconut juice, they are boosting the immunity, virus is going away with this. तो ये छोटी चीजें तो बता सकते हैं हम आम लोगों के लिए, हर घर में मौजूद है। कहाँ पर नींबू नहीं है? कोई घर आसाम में ऐसा नहीं है जहां पर नींबू नहीं है। नींबू का पानी पी लीजिए, आप बता लिए। बी कॉम्प्लेक्स ले लिए, बी कॉम्प्लेक्स 2 पैसे की गोली होती है, ले लीजिए। और फोलिक एसिड होती है, जिसको मुंह पक जाता है, जिसका खून कम हो जाता है, उसको फोलिक एसिड देते हैं 5 मिलीग्राम की दे दीजिए। इट हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले। फोलिक एसिड क्या करता है, आपके जो सीलिया होते हैं, जो लंग्स के अंदर बारीक बारीक हेयर नुमा होते हैं, वो जो है डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो ये एक ही साइड पे रहते हैं। कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है, अगर कोई चीज बाहर से जाती है, खांसी आती है, खांसी आने का मतलब ये है वो उसको निकाल के फेंकते हैं। तो बिलियंस ऑफ सीलियास बाहर फेंकते हैं। और रिसर्च ये किया गया है, ये फोलिक एसिड उस सीलिया को तकलीफ पहुंचाते हैं। बताइए, तो अगर बलगम भी आया या वायरस आया या बैक्टीरिया गया अंदर, तो उसको निकाल कर फेंकते हैं। इट हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले। वैसे विटामिन डी है। विटामिन डी आपको जो है हमारी बॉडी में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव कब होता है? जब रोशनी गिरती है सूरज की, तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। और ये विटामिन डी अगर आपका नॉर्मल होना है 30 से लेके 100, आज अब बड़े बड़े लोगों को देखिए जो एसी की गाड़ी में बैठते हैं, एसी के ऑफिस में बैठते हैं, कभी धूप लगती नहीं लगने में अगर हमारे पास के पास डायरेक्टर्स के हम करवाए, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो 4 आया है उनका, 4 10 आया है उनका। तो ये जो है 4 10 आने से उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उनको विटामिन डी के टैबलेट्स आते हैं, उसके जो लिक्विड आता है, हफ्ते में 1 बार लियो बोलते हैं। क्यों लियो बोलते हैं? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन अलग होते हैं, जिसमें विटामिन सी होती है, B1 होता है, B6 होता है, B12 होता है। और ये जो विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। अगर आप 10 गिलास ऑरेंज जूस पी ले, नो हार्म इज देयर, कोई हार्म नहीं है आपको। एक्सेस विल बी वॉश्ड आउट थ्रू योर एक्सक्रीटेड आउट। अगर विटामिन ए, डी, ई ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, आप जो है अगर ज्यादा लिए तो लिवर टॉक्सिसिटी होके आपको डैमेज होता है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताते चलो, फॉर आवर ब्रदर्स आल्सो, फॉर आवर co-colleagues, for our doctors, from budding doctors also, how this will damage it. I used to work as a pediatrician, as a neonatologist, you know, जो दूसरे लोग हैं नॉन मेडिकल है उनको बताऊं, 1 घंटे का बच्चा से 28 दिन के बच्चे को ये नियोनेटोलॉजी बोलते हैं। ये नियोनेटोलॉजी होता है 1 दिन से 28 दिन तक। इसकी साइंस अलग होती है, इनका मैनेजमेंट अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है। तो आई वर्कड इन दैट फॉर 3 years. आई यूज्ड टू मैनेज 40 incubators, 4 ventilators alone. 800-900 ग्राम के बच्चे हमारे पास से अलाइव जाते थे। तो इसकी साइंस ही अलग होती है। तो वहां पर एक लेबनानी औरत आती थी, सऊदीया में मैं जहाँ काम करता था, वो रोजाना गाजर का जूस पिलाती थी बच्चों को। 6 महीने से पिला रही है, रोज 1 गिलास जूस। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका कलर भी जो है गाजर के वैसा हो गया। लीवर देखे तो 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। उसके बाद में डेथ हो गई बच्चे की। क्यों हुआ है? विटामिन ए टॉक्सिसिटी। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। वैसी विटामिन डी अगर आप एक्सेस लेंगे तो डैमेज होगा, ये यूरिन से नहीं जाएगा। विटामिन डी, ई भी वैसी है। तो इसके लिए हम हफ्ते में 1 बार दो बोलते हैं। मल्टीविटामिन लोग टैबलेट्स खाते जाते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी आपका बैलेंस डाइट रहता। विटामिन डी ले लेते आप बहुत ज्यादा, उसके वजह से टॉक्सिसिटी होती। तो बी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो मैं बताते चला हूं आपको, विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट बड़े लोगों के लिए देते हैं फॉर 4 weeks। उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, अगर उनका 30 से 100 तक आ गया है तो देयर इज नो नीड फॉर टेकिंग विटामिन डी। नेचुरल जो सोर्स है विटामिन डी का वो है लाइट, सनलाइट में एक 10 से 15 मिनट बैठ गए आप, तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कन्वर्टेड इनटू दिस। तो उसमें होता क्या है, आपकी ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है।
अगर खाली ये कर दिए आप, किसी को अगर आया है नौजवान आदमी को आइसोलेट कर दिए, उसको जो है अच्छी ग़िज़ा दे दिए, विटामिन सी दे दिए, फोलिक एसिड दे दिए और विटामिन डी दे दिए, तो आप वायरस को मार सकते हैं बिना दवा के। ये एक होता है स्टेज। अब कैसा पता चलना चाहिए? अगर उसको खांसी आ रही है, सीना भर गया है, और तो उसको HRCT बोल के करवाते हैं। HRCT, हाई रेजोनेंस CT स्कैन। ये क्या बताता है कि आपके लंग्स इन्वॉल्व है या नहीं है। उससे पहले मैं बताते चलूं, ये जो वायरस है ये नॉर्मल स्किन के थ्रू नहीं जा सकता। अगर स्किन को जो है नहीं जाएगा। 3 एंट्री पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नोज, एक होता है ओरल कैविटी, एक होता है आई। तो अगर हम कहीं पर पकड़ लिए वायरस को, किसी से हाथ मिलाए, तो हाथ के अंदर नहीं जाएगा बॉडी में। ये हाथ अगर हम मुंह में डालें तो मुंह के जरिए से जाएगा। अगर ये हाथ जो है नाक में डालें तो नाक के जरिए से जाएगा। अगर आंख को मल लिए, आंख के जरिए से जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं आप बार बार सैनिटाइज करो हाथ को। अब जब ये वायरस अंदर जाता है तो 48 आवर्स नाक में, हलक में रहता है। क्यों हम RT-PCR कराते हैं? नाक से क्यों लेते हैं सैंपल, आपके हलक से क्यों लेते हैं सैंपल? इसीलिए लेते हैं कि ये वायरस, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरसेस आर देयर इन द थ्रोट एंड नोज। ये 72 आवर्स तक रहता है आपकी बॉडी, ये यहाँ पर। वहां से नीचे जाएगा लंग्स में। लंग्स में गया तो इट विल डैमेज इट। डैमेज क्या करता है? निमोनिक चेंजेस आते हैं। आज ये मालूमात जो हुए हैं ये इटाली में हुए हैं। इटाली में थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हो रहे थे। आप देखेंगे लास्ट ईयर का आंकड़ा 10,000, 20,000 रोड पे मर जा रहे हैं हर जगह। तो वो लोग क्या किए, जो डेड बॉडी है उसकी ऑटोप्सी किए। ऑटोप्सी क्या किए, उनको चीर फाड़ के देखे तो अंदर क्लॉट्स आ गए हैं, उनके लंग्स के अंदर क्लॉट्स आ गए हैं, उनके जो है शरीयान में क्लॉट आ गए हैं। हार्ट अटैक हुआ है तो उसके अंदर क्लॉट आया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है तो उसके अंदर क्लॉट आया है। तो हमारे पास चूंकि लेट स्टार्ट हुआ, उनके तजुर्बे से हम फायदा उठाए। तो इसके अंदर क्या होता है, गाढ़ापन आता है खून के अंदर। ये मरज के अंदर viscosity of the blood is increased. This viscosity of the blood will lead to clot. This clot, if it goes to the heart, it causes myocardial infarction, heart attack. If this clot goes to the brain, it causes cerebral infarct. If it goes to any other part of the body, that damages it, including the lungs. इसके लिए काम करने वाली चीज है, 3 चीजें हैं। 3 ही चीजें हैं। अगर आप पूछे आज सारे डॉक्टर्स को भी मैं बताते चलूं, the main focus for the treatment of coronaviruses, for complications को बचाने के लिए, एक है ब्लड थिनर। ब्लड थिनर क्या होता है? एकोस्पिरिन, एस्पिरिन होता है, 2 पैसे की गोली होती है। एस्पिरिन, वॉर्फ और एलिपिस, एपेक्सिबैन, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लड थिनर है। ये तीनों देने से ब्लड के अंदर जो गाढ़ापन आता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, जो क्लॉट बनता है वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। तो आप खाली एस्पिरिन दे के बचा सकते हैं इसको। बड़े बड़े रेमडेसिविर, अपिक्स और जो है बड़े चीजें, फेविफ्लू, ये सब देने की जरूरत नहीं। आप अगर ये दे दिए तो हार्ट अटैक से बचते हैं। आज आप देखेंगे लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये कोविड से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मरा। 99% ऑफ हार्ट अटैक्स ड्यूरिंग कोविड इज ड्यू टू कोरोना वायरस। Let me tell to my colleagues, to all my doctors, to all my staff members, all the participants in this seminar, that 99%, 95% of the deaths due to heart attack is only due to coronavirus now. That is due to viscosity of the blood is increased. That is due to clot formation. This clot will go and obstruct in the coronary arteries and causes heart attack. तो आज आप देखे होंगे किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसके मौता में जा रहे हैं 1,000 आदमी, 500 आदमी। अरे कोरोना से नहीं मरा, वहां से पूरे संक्रमित होके आ रहे हैं, पूरे लोग लेके आ रहे हैं वायरस। तो हम ये अवॉइड करें। तो तीसरी चीज जो करने की है, आपकी जो लंग्स के अंदर अगर चेंजेस आ गए हैं तो हमारे लंग्स के अंदर 5 कंपार्टमेंट्स है, 5 सेगमेंट्स है। जैसा एक घर में 5 रूम होते हैं वैसे, तो हर कंपार्टमेंट का 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक तो 25 का स्कोर होता है।
तो इसको सीवियरिटी स्कोर बोलते हैं। जब आप देखते हैं उसके अंदर सीटी स्कैन कराए बाद उसके अंदर देता है कोरट 1, कोरट 2, कोरट 3, कोरट 4, कोरट 5 सब देता है। तो इसके अंदर क्या है, आपको अगर RT-PCR आपका पॉजिटिव आ गया है, चेस्ट के अंदर थोड़े से स्पॉट्स है, तो इसको जो है कोरट 5 में देते हैं। ये ग्रेडिंग है इसकी। तो ये ग्रेडिंग करते हुए फिर आपको सीवियरिटी स्कोर देता है। उसके अंदर देगा 5/25, 10/25, 11/25। इससे मालूम होता है कि कितना लंग आपका डैमेज हो गया है। अगर आपका लंग डैमेज लेस देन 8 से कम है अगर स्कोर आपका, तो माइल्ड में आता है, और 8 से लेके अगर 12 तक है तो मॉडरेट में आता है, और 12 से ऊंचा है 15/25 ये सीवियरिटी में आता है। इसके अंदर क्या होता है, माइल्ड के अंदर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल रहता है, 96, 97, 98 रहता है। अब ये क्या होता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको ऑक्सीमीटर बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, एक उंगली में लगाते हैं आप, आपका हमारा जो सैचुरेशन होता है वो 97, 98 होता है, एक आम आदमी का, आपका लो, मेरा लो, किसी का भी लो। अब इसके अंदर क्या होता है, आहिस्ता से सैचुरेशन गिरता है। अब मैं आपको बताते चलूं, नॉर्मली इसमें भी गलतफहमी है। गलतफहमी क्या है, आप देखते हैं कि सैचुरेशन 98 है, खुश हो जाते हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे लंग्स के अंदर जो एयर आती है 500 सीसी आती है, 500 सीसी एयर, और हम हमेशा एक्सचेंज नहीं होती। जो एक्सचेंज होती है 350 सीसी होती है। तो जब आप घर में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और कहीं बाजार जाके आते हैं, 350 सीसी होती है। जब आपका लिफ्ट बंद हो जाता है, 4 माला चढ़ते हैं, या फिर आप जो है साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर ट्रेडमिल करते हैं, या हॉकी खेलते हैं, तब 500 सीसी एयर आपकी एक्सचेंज होती है। तो अभी क्या बोलते हैं आपको, आप अगर देखना है रियल सैचुरेशन आपका, एक 5-7 मिनट की वॉक करके लगाइए। अगर सैचुरेशन आपका 95 आ रहा है तो ऑलरेडी आपका लंग इन्वॉल्व हो चुका है 20%। तो जब तक 20% लंग इन्वॉल्व हुए बाद में भी आपका 98 आता है सैचुरेशन, इसी में लोग मार खा रहे हैं, अरे मेरा तो सैचुरेशन बहुत अच्छा है। एक फाइन मॉर्निंग देखे तो जैसा पानी गिरता है वैसा 88 पे चले जाता है, 70 पे चले जाता है। तो वो वक्त ऐसा रहता है, आपको जो है घर में नहीं ट्रीट कर सकते आप। जैसा 8 से बढ़ गया सैचुरेशन तो फिर आपको जो ऑक्सीजन होना पड़ता है, और ये मॉडरेट में आते हैं। अगर आप 10 तक भी ले रहे हैं, अगर घर में ऑक्सीजन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, और थोड़े से बेसिक लोग वाकिफ है, यू कैन ट्रीट स्टिल इन द हाउस विथ ऑक्सीजन देते हुए, तमाम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए। सीवियर क्या होता है, जिसका सैचुरेशन 90s में चले जाता है या 90 के नीचे चले जाता है, ये आते हैं सीवियर कैटेगरी में आते हैं। ये घर में ट्रीट नहीं कर सकते, इनको जो है हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। ये 3 कैटेगरी है, एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट, एक है सीवियर। कैसे मालूम होना है, आपको जो है सीटी स्कैन करवाए, अगर स्कोर आपका 8 से कम है तो माइल्ड में आते हैं, अगर आपका 8 से 10 तक है मॉडरेट में आते हैं, और 10 से बढ़ के है सीटी स्कैन का स्कोर सीवियर में आते हैं। तो हम अल्लाह के फजल से अब्दुर्रहमान भाई, हम माइल्ड को भी ट्रीट करे हैं, मॉडरेट को भी ट्रीट करे हैं, सीवियर को भी ट्रीट करे हैं विद गुड टीम एट द ग्राउंड लेवल। अगर करते हैं तो मैं आज हमारे साथियों को भी, बडिंग डॉक्टर्स को भी, नर्सेस को भी, और हमारे उलमा हजरात को बोलता हूँ, ये काम आप कर सकते हैं। एक तो अवेयरनेस लाना है, क्या है कोरोना वायरस, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिवेंशन लेना है, क्या टेस्ट करवाना है, कब करवाना है। देरी नहीं करना है, इसमें देरी करे कि आप जो है सीधा आईसीयू की तरफ जा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द टेस्ट करवा लें तो उतना जल्दी ट्रीटमेंट भी होता है। मैं कहता हूं जैसे ग्रीन चैनल में चले जाते हैं आप जो है एयरपोर्ट पे, तो वैसा आप ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं बिना किसी चीज के, घर में रहते हुए, आप सब खाते पीते हुए, अपना करते हुए, ज्यादा खर्चा नहीं करते हुए भी आप ठीक हो सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, अगर सैचुरेशन आपका गिर रहा है, 93 से नीचे आ रहा है, तो फौरी जो है इनको ये होता है कि 25% से ज्यादा आपका लंग इन्वॉल्व हो चुका है, और स्कोर निकाले तो आपका 8 to 10 आता है।
तो इसको भी हम अच्छी टीम के साथ घर में ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड होता है जिसको जो है कहते हैं सीवियर, उसको तो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। वहां पर रेमडेसिविर जैसी दवा है, ये एंटीवायरल दवा है। वायरस हर सेल के अंदर चले जाता, हर सेल के अंदर जाता। अगर मेरे साथियां भी है, डॉक्टर्स भी है, दे ऑल एग्री टू मी दैट एवरी सेल द वायरस एंटर्स। तो क्या हम हर सेल को मारेंगे? अब उसकी मिसाल कैसी है, अगर आपके घर में एक चूहा आ गया, रैट आ गया, तो पूरे घर को तबाह करते हैं आप? नहीं, उसको पकड़ेंगे, कोई एक चूंटे से लगा के बाहर फेंकेंगे। तो ये वायरस को भी क्या करना है, आप इम्यूनिटी बूस्ट करके, आप अच्छी ग़िज़ा लेके, हाई प्रोटीन डाइट लेके, आप जो है थोड़ी सी लंग की एक्सरसाइज करके, आप न्यूबलाइजेशन लेते हुए इस वायरस को जो है आप दूर कर सकते हैं बगैर एंटीवायरल्स लिए के। हम लास्ट ईयर कोई भी एंटीवायरल किसी को नहीं दिया, इस टाइम पे इसीलिए देना पड़ा। अब जो स्ट्रेन आया है, ये एक यूके स्ट्रेन है, एक ब्राजीलियन स्ट्रेन है, एक है आपके साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले का वायरस एक वायरस एक सेल को मल्टीप्लाई करता था, ये क्या होता है, सेल के अंदर चले जाता, सेल की जो ग़िज़ा है वो यूज करके मल्टीप्लाई करते रहता। अभी ये एक वायरस 10-10 सेल्स में जा रहा है। ये जो नया म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, तो ये क्या फास्ट डेवलप हो रहा है, फास्ट जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये जो नया वायरस आया है, नया जो स्ट्रेन आया है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, तो हजारों स्पाइक्स होते हैं, इसके अंदर 50 स्पाइक्स में चेंजेस आ गए हैं। तो वो चेंजेस आने से ये इसका बिहेवियर बदल गया है। तो हर वायरस करता है। आप देखे होंगे कोई दवा पहले लगती थी, अभी नहीं लग रही है। जैसा क्लोरोक्विन लगती थी पहले मलेरिया के लिए, आजकल काम नहीं कर रही। तो वैसी ये भी हर वायरस, हर बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए कुछ चेंजेस लाता है। तो ये भी अभी क्या किया है, सेकेंड वेव जो आई है, इसके अंदर चेंजेस आए हैं उसके। ये चेंजेस को जो है अब हम कैसे कर रहे हैं, इसको जो है बहुत फास्ट डेवलप। अभी मेरे पास 5 पेशेंट्स ऐसे हैं, RT-PCR नेगेटिव है, उनका कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको देखा गया तो उनका सैचुरेशन गिर रहा है। अरे सैचुरेशन क्यों गिर रहा है भाई, 98 रहना चाहिए, 95 आ गया, 94 आ गया। उनका एक HRCT कराए, CT स्कैन कराए तो उनका स्कोर आया है 15/25। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ भी सिम्टम्स नहीं है। तो वैसे पेशेंट्स को फिर जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन देके, उनको स्टेरॉइड्स देके करके फिर लाए, ठीक हो गया पेशेंट। तो अभी ये जो फॉलो हो रहा है, ये नॉर्मल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपको फीवर आते हुए खांसी है, सीना भरा हुआ है, तो HRCT कराना है, यानी CT स्कैन करवाना है। CT स्कैन करे बाद में जैसा आप आईने में सूरत देखते हैं, आपको सारा मालूम हो जाता है। और अगर लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, आप ग्रीन चैनल में है, और अगर लंग्स इन्वॉल्व है, थोड़े हैं, तो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, और जरा बढ़ के है तो मॉडरेट में आते हैं, और बढ़ के है तो सीवियर में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा बताते चलूं, पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में होना चाहिए, हर घर में। आप बताइए, 400 रुपए की चीज है, कोई महंगी चीज नहीं है। और अगर बल्क में अगर अजमल फाउंडेशन खरीदता है चाइना से, उनसे, तो 300 में 250 रुपए में मिलेगा। बाहर 1000 में बिक रहा है, 2000 में बिक रहा है। हमारे एनजीओ क्या किए हैं, यहाँ पर 800 से 1000 मंगा लिए हैं। फिरोज भाई मंगाए हैं, ये मंगा के सारे लोगों को जो है वही दाम में दे दिए हैं, 300 रुपए। फ्री में मत दीजिए, आप फ्री में दिए तो बहुत ही भला है। आप गैर मुस्लिम को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिख को, इंसानियत के नाते सारों में दीजिए, ये बहुत बड़ी खिदमत है। We are not differentiating between any religion, caste, creed, no. We are treating the humanity. Or Ajmal Foundation stands for humanity. Ajmal Foundation stands for service to humanity, service to God. तो आज की तारीख में हम ये पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट के पास लाने के लिए बोलना है। सेकेंड चीज क्या करना है आपको, दूसरी चीज जो अहम है इसके अंदर, ये हेल्थ एजुकेशन देना है, मस्जिद से देना है, इमामों को ट्रेन करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है ये। और थर्ड चीज जो टेक्निकल टीम है आज जो मैं मुखातिब कर रहा हूँ,
ये हमारे डॉक्टर्स से, इनको सैल्यूट करता हूँ. आई सैल्यूट ऑल द डॉक्टर्स फ्रॉम अजमल फाउंडेशन who are beneficiaries, who has taken little help from the Ajmal Foundation, and particularly to the trustees of the Ajmal Foundation. They had a vision रख के उन्होंने ये बच्चों को मदद की है. आज की तारीख में हम आए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैसा कर रहे भी होंगे आप लोग. You might be doing all this service, but still I am telling you, we'll form a COVID task force or COVID helpline service, COVID IT cell. We'll form this, and through this telemedicine facility, 4 डॉक्टर्स बैठ के आप जो है लोगों के कॉल्स लेते चले गए, लेके जो है उनको टेलीफोन पे बताए कि भाई क्या सिम्टम्स है उनके, क्या सिम्टम्स है, क्या टेस्ट करवाना है, क्या नहीं करवाना है, और फिर करना है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. अगर एल्डरली है तो एल्डरली को कैसे सेव करना है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है और हार्ट डिजीज वाले हैं, उनको कैसे करना है. वी कैन गिव दिस सर्विस. आई एम गिविंग द सर्विस. अब्दुल रहमान साहब इज गिविंग द सर्विस थ्रू आउट इंडिया. ही इज नॉट ए डॉक्टर, बट ही हैज हेल्प्ड thousands of people in elevating this suffering. So now in this time, this hard times for our country, for our state, for our humanity, for our all our Indian citizens, this is the time where we want to give our this. So I request all the budding doctors, first year, second year, third year, fourth year doctors, and also alumni, they can give on a higher scale. उनको दे सकते हैं आप. क्या देना है अब इसके अंदर जो है, और छोटी चीज बताऊं, इसके अंदर 5 टेस्ट करवाने हैं. क्यों करवाना है 5 टेस्ट? अब आप बोलेंगे भाई ब्लड थिनर दे रहे हैं, इनको देना है नहीं देना है, कितना देना है, वो मालूम करने के लिए एक डी डाइमर होता है. डी डाइमर क्या बताता है, आपके खून के अंदर कितना गाढ़ापन आया है, विस्कोसिटी कितनी है. उसका नॉर्मल वैल्यू है 500. अगर 500 से बढ़ के 800 आता है तो उनको एकोस्पिरिन 150 मिलीग्राम सिंगल टाइम देना है. अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो एलिक्विस के नाम से मिलती है, एपिक्साबैन बोल के, 700 रुपीज में आते हैं 10 गोलियां. ये 100 टाइम्स बेटर है एकोस्पिरिन से. ये दे सकते हैं 2.5 मिलीग्राम सुबह में, शाम में. ये डॉक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ. अगर आप ये दे दिए तो देयर विल नॉट बी क्लॉट फॉर्मेशन. अगर आज आप करवाएं उसका 1000 है, फिर 1 हफ्ते के बाद करवाएं, अगर उसका 500 आ गया है तो 2 टाइम्स देने के बजाय 1 ही टाइम दें आप एलिक्विस या एकोस्पिरिन. बाद में स्लोली कम कर देना है. और आपको टेस्ट करना है कि भाई सही जा रहा है, डोज नहीं जा रहा है. पीटीटी, एपीटीटी, आईएनआर बोल के एक टेस्ट होता है, उससे मालूम करना है कि भाई आपका जो है ब्लड थिनर कहीं ज्यादा तो नहीं चले जा रहा. ज्यादा गया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं. ये एक हो गया. सेकंड होता है, अगर आपके लंग्स इन्वॉल्व है तो फर्स्ट 5 डेज नॉर्मली नहीं देना है. कब देना है? अगर इफ यू आर सीइंग ए पर्सन इज अ डायबिटिक वन, लॉट ऑफ इन्फेक्शन इज देयर एंड यू आर सीइंग दैट ही मे गो इनटू सिवियरिटी, तो वी कैन स्टार्ट दिस. अगर किसी का 60 kg है वेट तो डेक्सामेथासोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. आप जाइए नेट पे जाके देखिए, वंडरफुल ड्रग फॉर treating the chest infection in corona is dexamethasone, steroids. But steroid कैसा है? डबल एज वेपन है. आप चाकू से जो है आप सेब भी काट सकते हैं और हाथ भी काट सकते हैं. आप जो है कोई चीज है उसके इलेक्ट्रिसिटी से किसी को शॉक भी दे सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं. वैसी आज जो अपने पास एटॉमिक पावर है उससे एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं. आप जो है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए भी, रेडिएशन के लिए कर सकते हैं. तो ये जो चीजें हैं आपको इसका सही यूज करना है. तो आपको मालूम होना चाहिए, ये आम आदमी यूज नहीं करना है. स्टीरॉइड यूज करना है डॉक्टर्स, माय कलीग्स, even budding doctors, if they know how to use it, when to use it, what is the dose they have to use it, they can use it. इसके अंदर आता है 3 कैटेगरीज आते हैं. एक होती है हाइड्रोकॉर्टिजोन जो 100 मिलीग्राम्स की आती है, इसको 1 नंबर देता हूँ. एक आता है मिथाइल प्रेडिनिसोलोन, मेड्रोल के नाम से मिलती है, ये 5 टाइम्स पोटेंट होती है. और इससे 25 टाइम्स पोटेंट होती है डेक्सामेथासोन 5 मिलीग्राम्स. नॉर्मली गोलियां आती हैं 0.5 की आती है.
ये दी जाती है, स्टेरॉइड्स एलर्जी में दी जाती है, ब्रोंकल आस्थमा में दी जाती है, और जो है अभी कोविड के अंदर जो लंग में जो चेंजेस आए हैं उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है, मगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देना है, आपका शुगर मेंटेन करते हुए देना है। इसके अंदर थोड़ा शुगर बढ़ने का इम्कान रहता है, तो नॉर्मली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ अगर आप 1 गोली खा रहे हैं शुगर की, ये लिए बाद में 1.5 गोली कर दीजिए, उससे भी नहीं गिर रही है 2 कर दीजिए। अगर आप इंसुलिन 10 यूनिट्स ले रहे हैं 15 यूनिट्स लीजिए, 15 से भी नहीं हो रहा है 20 ले लीजिए, ये कब शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे आप इसको गोली को कम करते हैं वैसी शुगर भी आपकी नॉर्मल हो जाती है। अभी सारे डॉक्टर्स को भी मालूम है कि जब भी हम कोई स्टीरॉइड्स देते हैं सडनली स्टॉप नहीं करना है, इसको जो है टेपर करते हुए स्टॉप करना है। कैसे? अगर आप 6 मिलीग्राम सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, तो फिर 5 दिन के बाद में एक ही टाइम दें 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डे दें 1 गोली, उसके बाद स्टॉप करें। अगर सडन स्टॉप करेंगे तो आपका चेहरा, आपका पैर गर्म आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, बोले अरे क्या हो गया, किडनी का इन्फेक्शन हो गया क्या, इनका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या। तो ये हम जो है डॉक्टर्स के लिए है ये बात बता रहा हूँ। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? आपका लंग जो है वो इलास्टिक होता है, ऐसा बलून करे तो आप देखिए एक बकरे का लंग लाके देखिए, फूकिए खुल जाता है, फिर छोड़ दीजिए, तो इलास्टिसिटी होती है। ये मर्ज के अंदर इलास्टिसिटी चली जाती है। फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस इसको कहते हैं, अगर आपका हाथ जल गया तो स्किन खींचे जाता है, फाइब्रोज हो जाता है। वैसी लंग के अंदर ये लंग जो इलास्टिक होता है वो जाके हार्ड बन जाता है, लंग जाके लिवर के वैसा बन जाता है, तो इसके अंदर एंट्री नहीं होती हवा की, there will not be entry of the air in the lungs, so your saturation starts falling. हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए 98%, 97% ऑक्सीजन चाहिए। ये जब नहीं मिलता है तो आपका दिमाग बराबर काम नहीं करता। आपके हार्ट को अगर सही ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसके अंदर हाथ खींच के आपको हार्ट अटैक के चेंजेस आते हैं। तो हम क्या करना पड़ता है, इसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट करते हैं। ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने के लिए 2 चीजें हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ये क्या करता है, हवा में से, ये नॉर्मल हवा में से ऑक्सीजन को सेपरेट करके 5 लीटर तक दे सकता है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देना है। सेकंड होना है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बड़े सिलेंडर्स रखना है, इसको रख के 2 लीटर देना है। अगर 2 लीटर में आदमी का सैचुरेशन 98 आ गया तो 2 लीटर कंटिन्यू करना है। अगर 2 लीटर में 99, 100 हो जा रहा है तो उसको 1.5 लीटर्स कर देना है। 1.5 लीटर्स में भी अगर 99 आ रहा है 1 लीटर करना है, स्लोली कम करना है। ये टाइम क्यों देते हैं, हमारा जो लंग जो है वो लिवर के वैसा जो बन गया, हार्ट बन गया, इसको क्या करते हैं, न्यूबलाइजेशन करके उसको पिघलाते हैं, या फिर ऐसी खांसी का शरबत लेते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट कहते हैं, पल्मो क्लियर बोल के, पल्मो क्लियर के नाम से मिलता है, टस्क्यू के नाम से मिलता है, एस्कोरिल के नाम से मिलता है। ये क्या करता है, उसको जो है पतला करके बलगम को निकालता है। जब बलगम निकल जाता है तो फिर एयर एंट्री होना शुरू होती है। इसको हेल्प करने के लिए 3 चीजें हैं आपको जो है, एक होता है स्पायरोमीटर, 2 बलून्स होते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है 300 रुपए का, उसके अंदर फूंक लगाना, तो उसके अंदर बलून्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो लंग कैपेसिटी है उसके अंदर हवा एंटर होना शुरू होती है। आपका जो सैचुरेशन 95 है स्लोली 97 होता है, 98 हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये हर आदमी को मालूम होना चाहिए, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी मालूम होना चाहिए, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी मालूम होना चाहिए, नर्सेस को भी मालूम होना चाहिए व्हाट इज स्पायरोमीटर, हाउ टू बी यूज्ड। सेकंड होता है न्यूबुलाइजेशन, व्हाट डज इट डन, ये क्या काम करता है, ड्यूलिन बोल के एक लिक्विड होता है जो आस्थमा में देते हैं, वो लेके 3% नॉर्मल सलाइन में मिक्स करते हैं, 2 ml मिल्क के एक छोटी डब्बी होती है, उसमें डाल के प्लग लगाते हैं, उसमें वेपर्स आते हैं। वेपर्स क्या करते हैं, जाके हवा को खोलते हैं, खोल के लंग खुलता है इससे, और बलगम जो है बाहर निकलता है, स्पूटम निकल जाता है, तो फिर सैचुरेशन आपका ऊपर बढ़ने लगता है। तो हो गया। तीसरी चीज जो करने की है, प्रोनिंग बोलते हैं। प्रोनिंग क्या होता है, प्रोनिंग ये होता है, आप जितना सोते हैं ऐसा सुपाइन में आप ऐसा सो जाए,
ऐसा सोने में एक तकिया रखते हैं आपकी यहाँ पर गर्दन के पास, एक पेट के पास बेली का नहीं रखते हैं तकिया, पिलो, और एक पिलो इधर रखते हैं। ये 3 पिलोज रख के ऐसा सो जाएं। अगर किसी का सैचुरेशन 93 है, ये प्रोनिंग करने से 95 हो जाता है। अब बताइए, इसके लिए कोई बड़ी डिग्री चाहिए आपको? मेडिकल डिग्री चाहिए, एमडी की डिग्री चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए? कोई नहीं, हर आदमी कर सकता है। तो ये बातें हम सबको बताएं। क्या? अगर सैचुरेशन किसी का बढ़ाना है, एक करें स्पायरोमीटर, सेकंड करें न्यूबुलाइजेशन, थर्ड करें प्रोनिंग। ये 3 चीजें करने में आपका सैचुरेशन बढ़ जाएगा। तो ये बातें बताए अगर आप, तो आज की तारीख में एमडी के वैसा, पल्मोनोलॉजिस्ट के वैसा काम कर सकते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट कितने मिलते हैं आपको? पूरे गुवाहाटी में मिलाए आप तो 10-15 मिलेंगे, हुजाई में मिलाए तो 1 मिलेगा। वो इतना मसरूफ रहेगा, आपको देख भी नहीं सकेगा। अब हमारे ये डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? आप टेलीफोन आया, हाँ क्या है, अस्सलाम वालेकुम, क्या है, क्या एज है आपकी? ये एज है। क्या है आपको तकलीफ? खांसी है। खांसी के बाद क्या है? बुखार है। उसके बाद आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराए नहीं कराए? कराए। पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। सैचुरेशन कितना है? 98 है। आप आइसोलेट हो जाइए, आप अलग हो जाइए, आप जो है गार्गलिंग करिए बीटाडीन से, आप थोड़ा सा स्टीम ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, फोलिक एसिड ले लीजिए, और जिंकोबिट लीजिए, जिंक प्लस दिस बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी ले लीजिए, अच्छी ग़िज़ा लीजिए, और वॉलनट खाइए। वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, आलमंड के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इफ यू गिव दिस, patient will become normal without anything. Then tell the patient to send the vitals every 8th hourly. 8th hourly क्या है? मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर 101 था, आप उसको बोले डोलो ले लो या मेफ्टॉल फोर्ट ले लो। फिर दोपहर में देखे टेम्परेचर हैज कम डाउन, वेरी नाइस। तो मैं क्या लिखता हूँ? वेरी नाइस वाइटल्स, कीप इट ऑन, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। दैट्स ऑल। इतना करना है आपकी टीम को। फिर क्या बोलता है? शाम में बोलता है, नो सर आई एम गेटिंग मोशंस। मोशंस इज पार्ट ऑफ द कोरोना सिम्टम्स। क्या होता है? कोरोना का जो शक्ल होती है उसकी, वो लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके करीब होती है तो उसको अट्रैक्ट होता है। वैसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी सेल्स होते हैं, उसको भी अट्रैक्ट होता। तो ये 2 सिम्टम्स आते हैं, एक तो लंग के आते हैं, एक डायरिया के आते हैं। तो आप क्या करना है? उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्पोरोलैक बोल के मिलता है। स्पोरोलैक क्या होता है? इट इज लैक्टोबैसिलाई। जो आपका दूध होता है दही में कन्वर्ट होने के लिए लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं। ये गुड जर्म्स बोलते हैं, अच्छे बैक्टीरिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके सैचेट्स आते हैं स्पोरोलैक के। हम बच्चों के अंदर भी जब डायरिया होता है तो हम कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। मैं सऊदीया में काम करता था, इतने दवाएं लेके कचरे की डब्बी में फेंकता था, उसको स्पोरोलैक देता था, ओआरएस बना के देता था, और यकीन नहीं करेंगे आधा लीटर पानी पी लेता था बच्चा। आप हाइड्रेशन कंप्लीट करें, इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है वो कंप्लीट कर लें ओआरएस से, और स्पोरोलैक दे दें, रेस्ट दे दें, आपके एलिमेंट्री कैनाल को ठीक हो जाता है। नो नीड टू गिव फ्लैजिल, नॉर्मेट, ये लोमोफेन, लोमोटिल देने की जरूरत ही नहीं। सिंपल चीज हाइड्रेशन करना है। तो इसमें भी क्या होता है? जब पेशेंट को डायरिया होता है तो आप उसको बड़े बड़े चीजें नहीं देना है, उसको बोलना है स्पोरोलैक ले लो, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली शाम में। और क्या करना है? ओआरएस बनाओ 1 लीटर, हर एक मोशन आता है उससे 300 ml पानी पी लो। अगर 3 मोशन आए तो 900 ml ले लो। अगर बच्चा होता है, बच्चे को अगर मोशन आता है तो 60 ml, ये चाय की प्याली होती है 60 ml होती है, 60 ml ओआरएस दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। 10 मोशंस आएंगे, 10 बार अगर ओआरएस दे दीजिए, चाइल्ड विल बी प्लेइंग, नो नीड टू गेट एडमिटेड, नो नीड फॉर आईवी फ्लूइड्स, नथिंग। ये सिंपल चीजें हैं, ये हम आम करना है, हर आदमी को आम करना है। अगर आपके पास ओआरएस नहीं है तो आप क्या करना है? लेमन, लाइम होता है, लाइम को जो है उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा शक्कर डालिए, तो ओआरएस बन गया। हर घर में लाइम होता है, हर घर में शक्कर होती है, हर घर में नमक होता है।
तो ORS बना दिए, ORS बना दिए। एक आदमी को जो है ये पढ़ा रहे, ये दे रहे हैं आप, ये नहीं दिए तो आपको ले जाके एडमिट करना पड़ता है। एडमिट जब करते हैं तो उसको जो है IV लगाते हैं। IV लगाने के लिए बच्चे रोते हैं, और जब लगता है IV 6 घंटे में 200 ml जाएगा, जबकि अगर पी लेंगे तो 1 घंटे के अंदर 200 ml चले जाएगा। तो हम जो है घरेलू चीजों को यूज करते हुए, इसमें भी जब डायरिया होता है तो उसको ये करें। थर्ड डे होता है। अब ये क्यों कनेक्टेड रहना है? आप 24/7 आपसे कनेक्टेड रहता है। हमारे जो डॉक्टर्स की टीम रहेंगी, ये कोविड टीम से कनेक्टेड रहेंगे। अरे भाई, सुबह में उसका 101 था, दोपहर में उसका 100 हो गया, शाम में 98 हो गया, फिर नेक्स्ट डे देखा तो सर मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं उसको? भाई आप डूंगसॉ ले लो, या फिर जो एमसेट ले लो, या फिर पैंडी SR बोल के आती है वो ले लो, ठीक हो गया हो। तो आपसे कनेक्टेड रहेंगे तो ठीक होंगे वो। आप दे दिए प्रिस्क्रिप्शन दे के, 4 दिन बाद मिले तो 4 दिन में मर गया, वो सीरियस हो गया, क्या हो गया पता ही नहीं चलता। तो यू हैव टू गेट कनेक्टेड। सो दिस इज फॉर आवर टीम, दिस इंस्ट्रक्शन इज आई एम गिविंग फॉर आवर टीम, व्हाई यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द पेशेंट। यू हैव टू गेट कनेक्टेड बिकॉज यू विल बी मॉनिटरिंग द पेशेंट 24/7। मैं यकीन नहीं करेंगे आप लोग, कभी मैं अब्दुर्रहमान भाई रात के 3-3 बजे रात तक पेशेंट्स को देखते थे, सीरियस हो गए थे। कभी 8 घंटे यहीं बैठा था, कुर्सी पे बैठा हुआ 8 घंटे मुसलसल। एक पेशेंट का खत्म हुआ कॉल, दूसरा कॉल, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉल। तो ये हम थोड़ा डेडिकेट कर दें तो वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं अल्टीमेटली जो अजमल फाउंडेशन को, और फिर मरकजुल मारिफ को, और उसके तमाम ट्रस्टीज को, तमाम डायरेक्टर्स को सैल्यूट करता हूं कि दे हैड ए विजन and they have taken a right call at the right time to save the humanity, to relieve their pain, sufferings, not only of our community but all Indians, irrespective of caste, creed, religion. ये हम जो है करना है। और यकीन नहीं करेंगे, you people can change the whole things. You people can act as pulmonologist. एक जो DM करके आता है उसके वैसा काम कर सकते हैं। MD की जरूरत नहीं है इसको। मैं यहाँ पर 4 इमामों को ट्रेन करा हूँ जो जुम्मे का खुतबा देते हैं। उनको बताया क्या कोविड है, जुम्मे में जुम्मा की नमाज से पहले पूरे कोविड के बारे में बता दिए। तो जितने लोग आके बैठे थे 1000 आदमी इल्म में नाफे लेके गए। तो ये वो इल्म है, वही भी दे सकता है, मगर सही बातें बताना है और अपना हुदूद क्रॉस नहीं करना है। ऐसी काम नहीं कर रहे हैं इमाम साहब लेके स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, नो, कभी नहीं देना। इमाम साहब लेके किसी को फैविफ्लू दे रहे, नो। इमाम साहब लेके जो है किसी को रेमडेसिविर दे रहे, नो। क्या करना है? विटामिन C लो बोल रहे हैं, B कॉम्प्लेक्स लियो बोल रहे हैं, जिंकोविट लियो बोल रहे हैं, 4 ग्लास जो है ऑरेंज का जूस पियो बोल रहे हैं, 2 ग्लास जो है आपके कोकोनट वाटर पियो बोल रहे हैं, स्टीम लियो बोल रहे हैं, हाथ धो बोल रहे हैं, सैनिटाइज करो बोल रहे हैं, आप जो अच्छी ग़िज़ा लियो बोल रहे हैं। इतना काम करना है, इससे बढ़ के काम नहीं करना। उसके बाद हो रहा है भाई ऑक्सीमीटर लगा लो, क्या पल्स है, कितना है, 96 है, 97, बहुत अच्छा है। अगर नीचे गिरता है तो फिर ऑक्सीजन की इंतजाम करो। अगर उससे भी और गिरता है इनको हॉस्पिटल में जो है एडमिट कर दो। तो ये 3 स्टेजेस के होते हैं। मेरे पास हर रोज एक आदमी आता है पैसे वाला, आके बोलता है डॉक्टर साहब हम जो है एक हॉस्पिटल डालना चाह रहे हैं कोविड का, हमारे MS वाले आए। मैं बोला नहीं डाल रहा है, आप जूते खाएंगे, मार खाएंगे, आपको केसेस पड़ेंगे। इसके अंदर 3 किस्म के होते हैं। आप बड़े हॉस्पिटल जैसा हैम हॉस्पिटल है उसके करीब में एक जो है एक क्वारंटाइन सेंटर डालिए, जहां पर लोग पॉजिटिव है, कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, घर में रहे तो दूसरों को संक्रमित करेंगे। तो आपको क्या करना है? उनको लिटा देना है, नीचे एक छोटा टेस्ट रख देना है, 2 लैब टेक्नीशियन को, उनको टेस्ट करते जाओ बोल के, और उनको अच्छी ग़िज़ा दो, वहीं पर लेटे रहो। 14 दिन हो गए, घर को चले जाओ, RT-PCR नेगेटिव होगा। ये एक होता है स्टेज 1। स्टेज 2 होता है जिसका सैचुरेशन RT-PCR पॉजिटिव होता है, चेस्ट के अंदर थोड़े से जो इन्फेक्शन होता है। उसके लिए एक डॉक्टर चाहिए हमारे इसमें से, 2 नर्सेस चाहिए बस, सुबह में, दोपहर में, शाम में।
हर एक बेड के पास एक सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन, उसको कनेक्शन होना है। हमारे पास लतीफ साहब है हमारे साइंस एकेडमी के, उन्होंने एक काम क्या किया है, हमारे पास यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वेट करना पड़ रहा है 4-4 घंटे, 4 घंटे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वहीं पर दम तोड़ दे रहे लोग। तो उन्होंने क्या किया है, हमारे एनजीओ सफा बैतुल माल और मिलके 4 सिलेंडर लगा दिए, एक एक सिलेंडर से 6 कनेक्शन देती है। जैसा वजू बनाते हैं, एक पाइप में से 10 नल निकलते हैं। तो यकीन नहीं करेंगे, वो बाहर रखे जहाँ वेटिंग एरिया में आके ऑक्सीजन ले रहे हो, एक सिलेंडर से 10 आदमी ले रहे हैं ऑक्सीजन बना के। अभी हम बेंगलुरु भेजे, आपको भेजना है तो भी हम ट्रांसफर कर देंगे, वो बना हुआ है यहाँ से, आप किसी को बोल के वहां भी बना ले सकते हैं। तो ये आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाइए, अजमल की तरफ से तोहफा बोल के दीजिए। क्या है ये 5,000 में एक बन रहा है। तो वैसे अगर हम दे दें तो जो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प के बाहर जान दे रहे हैं, वो जो है ऑक्सीजन जब तक लेते रहेंगे जब तक कि उनका एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन हो गया तो फिर चले जाएंगे वहां पर। तो अक्सर लोग मर जा रहे हैं इसमें। आई टेल ऑल द हैम हॉस्पिटल ऑल्सो टू हैव इन द वेटिंग एरिया 1 ऑक्सीजन सिलेंडर connected with 10 people connections that will send you from here। अभी हम बेंगलुरु में होना था, हम यहाँ पर ट्रेन से उनको भेज दिए, 5 बना के भेजे। तो दिस ऑक्सीजन सिलेंडर कैन बी यूज फॉर दैट, ये कर सकते हैं सेकेंड स्टेज का। थर्ड स्टेज होता है जिसका सैचुरेशन नीचे गिर जाता है, तो उन्हीं लोगों को हैम हॉस्पिटल में एडमिशन देना। एडमिशन क्यों देना है, उनको जो आईसीयू फैसिलिटी चाहिए, उनको वेंटिलेटर चाहिए, उनको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, उनको जो है मेड्रोल इंजेक्शन देना है, स्टेरॉइड देना है आईवी, उनको मॉनिटर करना है। तो वो उसके लिए स्पेशलाइज केयर चाहिए, ये आम आदमी नहीं कर सकता। उनके लिए आईसीयू के नर्सेस चाहिए, पल्मोनोलॉजिस्ट चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, जो हमारे हॉस्पिटल में है। तो हम इसके 3 स्टेजेस, स्टेज 1 पॉजिटिव बगैर सिम्टम्स के, आप घर में किसी को पॉजिटिव कर रहे हैं बोल के आ जा रहे हैं, आप आके चले जा, जो पहले गवर्नमेंट कर रही थी, जो पॉजिटिव है पूरे घर वाले को लेके आ रही थी। सेकंड होता है थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है और लैब टेक्नीशियन की जरूरत है, ये कर सकते हैं। थर्ड स्टेज का है जो 10% होते हैं, 5% होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये अगर हम कर लें तो आसानी के साथ हम ये कर सकते हैं। चलिए अब क्या देना है, दवाई देने के अंदर आज की तारीख में अमेरिका में, यूरोप में एजिथ्रोमाइसिन बोल के देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन वायरस को मारती नहीं, ये दिमाग से निकाल लीजिए आप सारे लोग। आज क्या समझ रहा आदमी, मैं खा लिया साहब एजिथ्रोल, मैं खा लिया, मैं डॉक्सीसाइक्लिन खा लिया। अरे वायरस से ताल्लुक नहीं है। जो इसके अलावा क्या होता है, आपके अंदर इम्यूनिटी गिरने से सेकेंडरी इन्फेक्शन आते हैं। आप देखे होंगे जहां पर एक बड़ा झाड़ है, उसके नीचे जो है दूसरे पौधे भी आ जाते हैं, उसको काट के निकालते हैं, अनवांटेड है। तो ये भी क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी गिर जाती है, तो बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं अपने हलक में। तो जो बैक्टीरिया बिल्कुल वीक होते हैं, वो लोग अपर हैंड ले लेते हैं। तो उसको कम करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, सिंगल डोज में देते हैं, 500 मिलीग्राम देते हैं, डेली देते हैं 5 दिन के लिए। सेकेंड होती है डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी किसी को एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, किसी को डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। आज जितने भी पल्मोनोलॉजिस्ट दे रहे हैं, ये 2 में से एक देते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमन है, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको जो है डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते। बच्चे हैं उनको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देते, उनके दांत भी पीले हो जाते हैं डॉक्सीसाइक्लिन से, तो ये नहीं देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एल्डरली लोगों को देते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकती है। एक होती है दवा आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या है, ये कीड़े मारने की दवाई है। कीड़े के मुराद पेट में जो कीड़े होते हैं, एस्करिस के लिए यूज होती है, ऑक्सीयूज के लिए यूज होती है और कई अमराज के लिए यूज होती है। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, और पहले कल ही रिकमेंडेशन आया है WHO का कि आइवरमेक्टिन शुड बी यूज्ड। और ये साल का जो नोबेल प्राइज मिला है आइवरमेक्टिन वाले को मिला है। ये आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। इट शुड बी गिवन सिंगल डोज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 days। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हैदराबाद में,
पूरे पल्मोनोलॉजिस्ट पूरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम सिंगल टाइम, विटामिन सी, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये दे रहे हैं सब, या नॉर्मल ठीक हो जा रहे हैं। अब जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ फिर उनको स्टीरॉइड्स देते हैं। आप डी डाइमर करा लिए तो मालूम होता है कि इसकी विस्कोसिटी हुई, तो अब आपको जो है एकोस्पिरिन देते हैं या एलुपिस देते हैं। सेकंड होता है IL-6। क्या होता है बता दो, ये सेकंड टेस्ट होता है। टेस्ट होता है ब्लड का टेस्ट। आपके बॉडी में जब वायरस जाता है तो इसके खिलाफ में एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वायरस को मारते हैं। कभी मारते मारते क्या कर देते हैं, अपने सेल्स को भी मार देते हैं, क्योंकि जो शक्ल है वायरस की वो हमारे लंग के सेल से मिलती हुई है, तो हमारे लंग के सेल्स को भी मारना शुरू करते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो कैसा मालूम होना चाहिए आपको हो रहा नहीं हो रहा, तो IL-6 कराते हैं। IL-6 की वैल्यू है 6। अगर आपका 50 आता है, 60 आता है, तो यू हैव टू बी वेरी गार्डेड। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये डेक्सामेथासोन या मेड्रॉल, मिथाइलप्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये स्टीरॉइड्स देना पड़ता है, इसको रोकता है। ये रोके तो स्टॉर्म रुकता है। और एक आता है जो है एलेग्रा एम बोल के आती है, मॉन्टेक LC। मॉन्टेक LC जो होती है, ये रिसर्च किया गया है साउथ अफ्रीका में, इसमें देखा गया है कि 5th डे से अगर स्टार्ट करे तो आपका जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जिसमें 90% लोग मर जाते हैं, आज जो ICU में रहते हैं लोग, ये साइटोकाइन स्टॉर्म से मरते हैं। तो इसके लिए एक इंजेक्शन मिलता है, टोसिलिसिब बॉम्ब बोल के आता है, वो जो है 33,000 में मिलता है, ब्लैक में यहाँ पर 4 लाख में भी बिका है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा है उसको यूज नहीं करते। तो इसके लिए जो है मॉन्टेक LC इस्तेमाल करें। 5वें दिन से 8वें दिन तक साइटोकाइन स्टॉर्म भी चले जाता है। और एक होता है CRP कराने से क्या मालूम होता है कि आपके बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, ये 3 चीजें। और जब अच्छा होते रहता है ये पैरामीटर्स नीचे आते हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन चीजें मैं बता चुका हूँ, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, हमारे आम आदमियों के लिए भी। और if you have any doubts, any questions, answer anything, they can ask me about vaccination, about this COVID, about the treatment, about all these things they can ask. Thank you so much for giving me patient hearing.